آج کا کلام، میرے آج کے کلام کا عنوان ہے روح القدس کا آنا اور یسوع مسیح کا آسمان پر جانا، دونوں فائدہ مند ہیں۔ آپ نے میرا عنوان نہیں سنا، ابھی تک آپ پورے طور سے پیغام کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ سامنے اسکرین پہ دیکھیں، میرے آج کے پیغام کا عنوان یسوع مسیح کا جانا، روح القدس کا آنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ سن لیا؟ پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یسوع کہہ رہے ہیں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے یسوع کہہ رہے ہیں میرا جانا فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار آئے گا۔ تو میرا جانا اور روح القدس کا آنا فائدہ مند ہے۔ اور آگے کیا ہے، لیکن اگر میں نہ جاؤں تو لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ بولے ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح چرنے میں پیدا ہوا اور تقریباً 33 سال، 33.5 سال یسوع زمین پر رہا، اور اس میں سے 3.5 سال یسوع نے منادی کی، اور اپنی خدمت پوری کرنے کے بعد یسوع مسیح مصلوب ہوئے، پھر دفن ہوئے اور زندہ ہو کے آسمان پہ چلے گئے۔ تو یسوع مسیح کی خدمت کا ایک پیریڈ ہے، ہم کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ تثلیث ہمارا ایمان ہے، تثلیث ہمارا ایمان ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ ہمارا ایمان ہے۔ باپ کی اپنی خدمت ہے، اس کا ایک اپنا آفس ہے، بیٹے کا اپنا آفس ہے، اور روح القدس کا، ہولی اسپرٹ کا اپنا آفس ہے۔ یہ تین میں ایک ہے۔ ابھی میں تثلیث پہ کلام نہیں سنا رہا، کسی وقت سناؤں گا ضرور، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تینوں کی اپنی اپنی خدمت ہے اور اپنا اپنا ایک دور ہے۔ یسوع مسیح کا دور، خدمت کا زمینی دور کب ختم ہوا؟ بولیے کب ختم ہوا؟ جب یسوع مسیح آسمان پہ چلا گیا۔ اصل میں زمینی خدمت یسوع کی ختم ہو گئی، لیکن یسوع کی خدمت ابھی بھی ہے۔ اب کیا خدمت ہے؟ اب وہ آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھ کے ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یسوع مسیح زمینی خدمت ختم ہوئی، جسمانی طور سے جب یسوع آیا تھا تب کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ زمینی خدمت ختم ہوئی، آسمانی خدمت ابھی بھی جاری ہے۔ خدا تعالیٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کے ہماری شفاعت کرتا ہے، لیکن یسوع اپنی خدمت پوری کر کے چلا گیا۔ اب سنیے، شاگردوں سے یسوع نے کہا میرا جانا، ابھی یسوع مسیح یہ جب کا واقعہ ہے، تب یہ جو آیت ہے یوحنا کی انجیل کی، تب تک یسوع مسیح نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ تو یسوع پہلے کہہ رہے ہیں کہ میرا آسمان پر جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں تو تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا جانا فائدہ مند ہے کیونکہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے ہوں۔ فائدہ مند یہ ہے کہ جس کو میں بھیجوں گا وہ 3 سال کے لیے نہیں آئے گا۔ جس کو میں باپ سے درخواست کر کے تمہارے پاس بھیجوں گا وہ 3.5 سال کے لیے نہیں آئے گا، وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یسوع نے کہا تم مجھے دیکھتے ہو مگر پھر نہیں دیکھو گے، لیکن روح القدس جب آئے گا تو تم اسے دیکھتے رہو گے، وہ تمہارے اندر ہوگا۔ بولے ہاللیلویا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ روح القدس کا ایک دور ہے، اور وہ دور کب شروع ہوا؟ آپ کو پتا ہے؟ عید پینتیکوست پہ روح القدس کا دور کب شروع ہوا؟ سب بولیے، روح القدس کا دور کب شروع ہوا؟ عید پینتیکوست کو روح القدس نازل ہوا،
दौर शुरू हो गया। ये कब खत्म होगा? रूह कुद्स का ज़मीनी जो दौर है ये भी खत्म होना है। कब होगा? जी, रैप्चर के वक्त, जब यीशु मसीह आसमान से ललकार, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज, खुदा के दर्शक के साथ आएगा, तो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और मैं आगे जाके बताऊंगा कि जी उठेंगे वो भी रूह कुद्स की मदद से जी उठेंगे। तो जब वो जी उठेंगे, तो जब कलीसिया आसमान में चले जाएंगे, तो रूह कुद्स के पीछे क्या करना है? रूह कुद्स किसको दिया गया? किसको दिया गया? बोलिए, किसको दिया गया? कलीसिया को। कब दिया गया? पेंटिकोस्ट के दिन। बोलिए, कब दिया गया? जब वो दुआ कर रहे थे पेंटिकोस्ट के दिन, कलीसिया को दिया गया। तो जब कलीसिया इस बात में चली गई, तो रूह कुद्स जमीन पे क्या करेगा? कलीसिया वो भी चला जाएगा, उसकी मिनिस्ट्री भी, जमीनी खिदमत वो तमाम होगी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। रूह कुद्स की खिदमत यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भी थी, मैंने पहले उसका जिक्र कर दिया हुआ है, लेकिन वो आरसी थी। और अब होली स्पिरिट की खिदमत कैसी है? मुस्तकिल है। बोले हालेलुया। अब वो हमारे साथ है और हमारे अंदर भी होगा। तो अब मैं बयान करूंगा कि रूह कुद्स में यीशु ने कहा मैं जाऊंगा तो भेजूंगा। रूह कुद्स भेज दिया। कब भेजा? दोबारा बताइए। इन्हें पेंटिकोस्ट पे भेजा, यानी यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन जमीन पे रहा, और आसमान में जाने के 10 दिन बाद, 40 और 10 कितने हो गए? तो यीशु के जी उठने के 50वें दिन बाद रूह कुद्स नाज़िल हुआ इन्हें पेंटिकोस्ट पे, और जो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और उस वक्त से रूह कुद्स जमीन पर है, यहाँ है, आपके दरमियान है, यहाँ पे है। हमें नजर नहीं आता। नजर क्यों नहीं आता? वजह क्या है? क्योंकि रूह है। रूह का बदन होता है, रूह का गोश्त होता है, हड्डियां होती हैं। तो जब बदन नहीं तो हम कैसे देखेंगे? हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे साथ है, और जिनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला है उनके अंदर भी है। बोले हालेलुया। अब रूह कुद्स के जो अभी मेरा आज का टॉपिक है वो है रूह कुद्स के काम, द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। रूह कुद्स करता क्या है, उसका काम क्या है, वो आया क्यों है? यीशु जब आया तो उसने क्या किया? मुझे बताइए। ये तो सबको पता है, मौत से किए जी। और कुछ बताइए। तालीम, शाबाश, नहीं सारा बताते जा रही। और भी बताइए। निजात, हाँ जी, निजात का काम किया, अपनी जान दे दी और हमारे कफारा, हमारा कफारा दिया। अब रूह कुद्स का काम क्या है? ये सुनिए, मेरा टॉपिक है आज का रूह कुद्स की खिदमत, द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। पहला काम, यूना की जी 16वां बाब उसकी 8वीं आई। अब ये सुनते जाइए गौर से। पहला काम पाक रूह का है कसूरवार ठहराना, गिल्टी, एहसास जुर्म पैदा करना। यीशु मसीह ने ये कहा था मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने नहीं आया, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। यीशु मुजरिम ठहराने नहीं आया, यीशु तालीम देने आया, लेकिन मुजरिम ठहराना, कसूरवार ठहराना, ये किसका काम है? पाक। सुनिए प्लीज, हाजिर रहिए यहाँ पे। पाक रूह का काम है कसूरवार ठहराना। किस बात के बारे में? जब आप कलाम सुनते हैं और कलाम आपके अंदर आ जाता है और आप कबूल नहीं करते। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप में से किसी को मैं निशाना बना के नहीं कह रहा। आप कलाम सुनते हैं और उसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन कबूल नहीं करते, तो होली स्पिरिट आपको कसूरवार ठहराता रहता है। समझ आ गई आपको? पाक रूह आपसे बोलता रहता है और कहता है तूने कलाम को कबूल नहीं किया, तू कसूरवार है, तू गिल्टी है। तो उसका एहसास उसके अंदर पैदा करता है, एहसास से जुर्म पैदा करता है। और अगर हम रूह की आवाज को सुनकर अपने कसूर को मान लें तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो जो रूह का गुनाह करता है वो कभी माफ नहीं हो सकता। पाक रूह का गुनाह हम क्या करते हैं, लेकिन जो रूह उसके खिलाफ बगावत करता है, जो रूह की तौहीन करता है, जो रूह
तौहीन करते हैं वो गुनाह माफ नहीं होगा। वो कौन सा गुनाह है? यही गुनाह कि पाक रूह आपको कायल कर रहे हैं, वो आपको कसूरवार ठहरा रहे हैं और आप मानते ही नहीं है। ये रूह के खिलाफ गुनाह है। जरूरी है कि जब वो कसूरवार ठहराए तो मान लें अपने कसूर को। रूह अपने काम से वापस नहीं आएगा, वो कसूरवार ठहराता रहेगा जब तक कि आप अपने कसूर से तौबा न कर लें। पढ़िए यूहन्ना 16:8 में आए लिखा है, यीशु ने कहा वो आकर, यानी रूह कुदस आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। और वो हर रोज ये काम करता है, सिर्फ गुनहगार को नहीं, ईमानदारों को भी कसूरवार ठहराता है। क्या ईमानदारों से गलतियां नहीं होती? निनाम सुन रही है, ईमानदारों से गलतियां नहीं होती? हेलो, ईमानदारों से गलतियां हो जाती हैं क्योंकि इस जमीन पर रहते हुए गलती हमसे हो सकती है। रूह कुदस हमें भी कसूरवार ठहराता है। वो अलग बात है कि हम उसकी ना सुने और ढीठ बन जाएं और क्या करना चाहिए, गर्दन का शर बन जाएं और उसको कबूल ना करें। लिखा है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, फौरन कबूल कर लो। तो यह लिखा है कि वो एहसासी जुर्म पैदा करता है, वो कसूरवार ठहराता है, गुनहगार होने का एहसास दिलाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साथ साथ आपसे कहना चाहता हूँ, जब कभी पाक रूह कसूरवार ठहराए फौरन अपने कसूर की माफी मांगे। फौरन। हमें कई दफा पता चलता है ओ ये तो गलत है, होली स्पिरिट एहसास दिलाता है और हम देर नहीं करते कि अच्छा कल माफी मांग लूंगा। उसी वक्त मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि कैसे रूह उसने कसूरवार ठहराया। मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ईद पेंटिकोस्ट की। आपको याद है ईद पेंटिकोस्ट में क्या हुआ था? सब ऊंची आवाज में बोले, क्या हुआ था? रूह नाज़िल हुआ था, पाक रूह नाज़िल हुआ था। और जब नाज़िल हुआ तो सब मजाक उड़ाने लगे, बहुत से लोग मजाक करने लगे। पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ क्योंकि रूह नाज़िल हो गया था। जब वो खड़ा हुआ और उसने लोगों की आंखों में आंखें डाल के कहा तुमने मसीह को मसलूब किया। देखिए मार्कुस साहब उसकी 37 साल कि पतरस ने उनको एहसास दिलाया क्योंकि पाक रूह बोल रहा था पतरस के वसीला से, और पाक रूह ने कह रहा था तुम गुनहगार हो, तुमने यीशु को मसलूब किया, तुमने एलानिया ज़लील किया मसीह को। और आज जो लोग तौबा नहीं करते, मसीह के कफारे को कबूल नहीं करते, वो यीशु मसीह को बार बार सलीब चढ़ाते हैं। और जब पतरस ने कहा तुमने मसीह को मसलूब किया तो लिखा है रूह उसने उनको कसूरवार ठहराया और उनके दिलों पर चोट लगी। बोले हालेलुया। तो दूसरा बात से साथ में लिखा है जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों में चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा ऐ भाइयों हम क्या करें? ये चोट लगी, ये क्या है? किसने चोट मारी? हेलो बोलिए किसने? क्योंकि पतरस जब कलाम सुना रहा था, रूह 7 लोगों से बात कर रहा था, लोगों से कह रहा था जी हाँ पतरस ठीक कह रहा है, पतरस ठीक कह रहा है, ये सही तालीम है, कबूल कर लो, गुनहगारों कबूल कर लो। उनके अंदर एहसास जुर्म पैदा हुआ, उसके अंदर गुनाह का एहसास पैदा हुआ, कसूरवार ठहराया होली स्पिरिट पे। और असर क्या हुआ? दूसरा बाब 41 आए। देखिए अगर आज आपको होली स्पिरिट कसूरवार ठहराए, देर ना करें। इधर देखिए कोई देर नहीं की, ठीक है? बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बस जिन लोगों ने पतरस का कलाम कबूल किया, रूह उसने उनको कायम किया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में गई हालेलुया। तो रूह उसका काम है एहसास जुर्म पैदा करना, हमारा काम है अपने जुर्म को छोड़ना। ठीक है? तो ये 3000 लोग मसीह पर ले आए, ईमान ले आए। फिर पौलुस रसूल अपने बारे में क्या कहता है? पौलुस रसूल कितना गुनहगार था आपके ख्याल में? निजात से पहले कितना गुनहगार था? बोले भाई बहुत बड़ा गुनहगार, बहुत बड़ा गुनहगार। वो अपने आप को कहते हैं मैं आई वाज द चीफ सिनर,
गुनहगारों में गुनहगारों का सरदार। ये एहसास कहां से आया उसमें? देखिए जरा, पहला तिमोथियुस पहला बाब 15वीं आयत, यानी क्या है ये बात सच, ये निजात पाने के बाद पौलुस कह रहा है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मैं सबसे बड़ा गुनहगार था, यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने आया, और गुनहगारों को जब निजात देने आया तो सबसे बड़ा चीफ सिनर, सीनियर सिनर मैं था। तो ये किसने एहसास दिलाया उसके अंदर? बोलिए, क्योंकि पाक रूह कसूरवार ठहराता है। और फिर जब यीशु मसीह से बातचीत की कि ऐ सऊल तू मुझे क्यों सताता है, वो कहता है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं खुदावंद तुझे से क्यों सताता है। और उसी वक्त पौलुस जो है उसने खुदावंद को कबूल कर लिया। रूह कुदस की आवाज को उसने लब्बैक कहा, रूह कुदस की आवाज को पे उसने हाजिर कहा अपने आप को, और रूह कुदस की आवाज को सुनकर यीशु मसीह का पैरोकार हो गया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अब आपको पता चल गया कि रूह कुदस का पहला काम क्या है। बहुत से काम है लेकिन मैं आज सारी स्टडी नहीं दूंगा। रूह कुदस का पहला काम मैंने क्या बयान किया? रूह बहुत से काम है, पहला काम क्या बयान किया? कसूरवार ठहराना। आपको कसूरवार ठहरा रहा है अगर फौरन उस कसूर की, उस गलती की, उस गुनाह की माफी मांग लें, वरना रूह के खिलाफ गुनाह करने वाला कभी बख्शा नहीं जाएगा। मौका है कबूल करने। रूह का दूसरा काम, मैंने कहा कि बहुत से काम है लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है। खुदा है पाक रूह, उसके बारे में बयान करने के लिए इतना सिर्फ 20 मिनट तो नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ चंद बातें बताऊंगा। दूसरा काम है, अभी दूसरा काम नहीं, याद रखें कि रूह कुदस को रंजीदा नहीं करना। अगर रूह कुदस आपसे बात करे, अगर रूह कुदस आपको कसूरवार ठहराए तो नाराज ना करें। 104 बाब 30 आयत, 104 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। अगर आपके दिल में खुदा का पाक रूह डालता है कि तूने ये गुनाह किया और आज तक माफी नहीं मांगी, तो रंजीदा ना करो, फौरन कर लो। तो खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। अब है दूसरा काम, होली स्पिरिट के काम बयान कर रहा हूं। दूसरा काम है वो गवाही देने के लिए कुव्वत देता है। उसने उदाहरण डाले थे कि उसने हमें रूह दी, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि धूप में गवाही उसके जी उठने की। तो यीशु मसीह का पाक रूह इसलिए आता है ताकि हमें गवाही देने की कुदरत दे। हिना क्या नाम है इसका, सुमेरा, वो या खड़ी होकर कह रही थी बार बार किसी के पास गवाही है आए, तो जरूरी शिफा की बात नहीं, गवाही है, निजात की गवाही देने के लिए आ सकते थे। आप ये बता सकते थे कि आप गुनहगार हैं, और गुनहगार थे, यीशु ने आपके गुनाह माफ किए, आप में दलेरी नहीं आई। जब रूह कुदस आता है तो आपको वो कुव्वत देता है ताकि आप गवाही दे सके। फिर झिझक नहीं होगी, फिर ये नहीं, खौफ नहीं होगा, आप भाग के आएंगे। और कई मीटिंग्स में तो ऐसा होगा कि हमें बंद करना पड़ेगा, कहने लगते नहीं बस बाकी अगली दफा। ऐसे दलेरी पाक रूह पैदा करता है। तो जब रूह कुदस आएगा, यीशु ने बता दिया कि वो दूसरा काम क्या होगा। तो इसके लिए पढ़िए इमाम पहला बाब उसकी 8वीं आयत, इमाम की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जी बोलिए, क्या पाओगे? सामने देखिए स्क्रीन पे, जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम, सब बोलिए, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत, ताकत, दलेरी, हिम्मत, बेखौफी, जुर्रत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। तो रूह कुदस कब आया? कब आया? और जब पेंटिकोस्ट के दिन रूह कुदस आया तो क्या हुआ?
उसी रोज इतनी कुव्वत आ गई पतरस में कि 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए। ये कौन सा पतरस है? ये वही पतरस है जो एक छोटी सी लौंडी, एक छोटी सी लड़की के कहने से डर गया, जिसने कहा तू भी यीशु का शागिर्द दिखाई देता है, और 3 बार जिसने इनकार किया। एक छोटी सी लड़की, आपने सबसे छोटी लड़की इस वक्त कौन है? शायद हो जाएगा, हो सकता है इतनी छोटी सी लड़की के सामने पतरस ने क्या दिया, नहीं मैं नहीं जानता यीशु को। 3 बार इनकार किया। अब वही पतरस जब पाखरू आ गया, कुव्वत आ गई, बोले हालेलुया। जब पाखरू आ गया, दिलेरी आ गई। वही पतरस जो डरपोक था, जो एक लड़की के कहने से, छोटी सी लड़की के खौफ में आ गया, उसने क्या किया? उसके खौफ का खात्मा हो गया। हालेलुया। और उसने यहूदियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मसीह को मसलूब किया। इतनी दिलेरी, वहां एक बच्ची से डर गया, और यहां हजारों की तादाद। इमाम से बात की 23वीं 24वीं आयत में लिखा है, 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है कि तुमने उसे मसलूब किया, तुमने उसे मसलूब किया, लेकिन खुदा ने उसे जिंदा कर दिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तुमने उसे मसलूब, और ये छोटी बात नहीं है। वही पतरस जो डरपोक था आज दिलेर है। हालेलुया। वो गीत नहीं गाते, मिले जा दलुए पाक देवेगा दलेरियां, जाग बैठ सुतियां बराता फिर तेरियां, शेरा मंदिर गज के कलाम तू सुनाएगा, जे ना करे तौबा सदा दोस्ता मिटाएगा। अब शेरों की तरफ गरज के साथ वो कह रहे, तुमने उसे मसलूब किया, उसे कबूल करो, अपने गिनाहों से पास आओ। और लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। उसी रोज 3000 मसीह पर ईमान लिया। बोले हालेलुया। इतना दलेराना खिताब, वो सुस्ती, वो लापरवाही, वो काहिली, वो डर, वो खौफ, वो कहां चला गया? लोग आ गया, दिलेरी देता है। क्योंकि शैतान अगर इस दुनिया का शेर है, शैतान अगर शेर की तरफ गरजता है, तो पाखरू जब हमारे अंदर आते हैं तो ईमानदार भी शेरों की तरह गरजते हैं। तालियां नहीं बजाएंगे पाखरू। एक और सुनिए पतरस का वाक्य। पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे, और एक पहला मौजज़ा होने लगा। पहला मौजज़ा यीशु मसीह का पहला नहीं, यीशु के आसमान पे जाने के बाद पहला मौजज़ा। पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे, आगे एक जन्म का लंगड़ा था, भीख मांगने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। पतरस ने कहा, क्या कहा? सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुम्हें दिए देते हैं। और आगे क्या कहा? उठ, यीशु नासरी के नाम से उठा, चल। फिर वो लंगड़ा उसी दम खड़ा हो गया, चलने लगा, भागता हुआ, नाचता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ हैकल के अंदर चला गया। बोले हालेलुया। ये वही पतरस है जो डरपोक था। अब देखिए कितनी दिलेरी से मौत से होते हैं। रुलकस आ गया है। और सुने इसके मौत से के बाद क्या हुआ? ये यूहन्ना की जी के चौथे बाब की 10वीं और 12वीं आयत में इसकी वजाहत हमें मिलती है। फिर इस मौजज़े के बाद क्या हुआ? मौजज़े के बाद ये हुआ कि यहूदियों के जो बड़े बड़े लीडर थे, अदालती, मजहबी और ये जो उनके काहिन थे, इन्होंने पतरस को और यूहन्ना को अपने पास तलब कर लिया। इधर आओ, तुमने ये क्या किया? तुमने एक लंगड़े को चलता कर दिया। उसने कहा, हमने नहीं, ये तो वो मौजज़ा उसने किया जिसे तुमने मसलूब किया, जिसे तुमने सलीब दिया, उसके नाम से हमने हुक्म दिया, ऐ लंगड़े उठ के चल फिर। और वो चलने फिरने लगा। ये तो रूह की कुदरत से हुआ है। बोले हालेलुया। अब इतनी दिलेरी, और उन्होंने कहा, खबरदार आइंदा मसीह का नाम लेके मुनादी ना करना। यूहन्ना की जी 4वां बाब उसकी 19वीं 20वीं आयत। पतरस ने जवाब में कहा, तुम इंसाफ करो कि ये कहां तक वाजिब है जब खुदा की बात को तुम्हारी बात से ज्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा है और सुना है वो बयान ना करे। मुमकिन नहीं। अब वो पतरस नहीं हूं मैं जो रुलकुस मिलने से पहले था। मुमकिन नहीं कि जो देखा है, सुना है, उसका बयान ना करें। और वो जब
फिर धमका के छोड़ दिया कि दोबारा मसीह का नाम मुनादी ना करना, वो और दलेरी से करने लगे। यहाँ तक कि चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा है इस मौत से के बाद कलीसिया की तादाद 5000 हो गई। तालियां नहीं बजाएंगे? तादाद 5000 हो गई और ये तादाद बढ़ती गई। और ये पैगाम हम जारी रखेंगे अगले इतवार और टॉपिक यही होगा रूल पुलिस के काम। रूल पुलिस के काम, अब उसके काम जो है, लेकिन एक मैं बयान करना चाह रहा हूं, एक काम बयान करना चाह रहा हूं कि रूल पुलिस हमें दुआ करना सिखाता है। बोलिए क्या करता है रूल पुलिस? रोमियो 8वां बाब उसकी 26 में आए, वही है रोमियो 8वां बाब 26 में आए, रूल पुलिस दुआ करना सिखाता है। अभी अगर आपसे मैं कहूं कि फलां बहन या फलां भाई खड़े होकर दुआ करें उर्दू में, तो आपकी दुआ 5-10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी, 3 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें दुआ करना आता ही नहीं। ठीक है, जब रूल पुलिस आता है तो हमें दुआ करना सिखाता है। देखिए क्या लिखा है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, और रूह खुद ऐसी आयें बात कर शिकायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। तो हम गैर ज़ुबानों में जब दुआ करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 14 बाब दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि अपनी रूह में वो भेद की बात कहता है। और आगे पढ़े पहला कुरिन्थियों 14 बाब 14-15 में आए, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़ुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी। अकल से कैसे करते हैं मरियम? रूह से, अकल से कैसे दुआ करते हैं? सोच सोच के उर्दू में क्या 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 मांगना है, क्या मांगना है। हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारी जरूरत क्या है। हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे हमसे कोई 5 किलोमीटर दूर शख्स बैठा है, उसकी क्या जरूरत है। तो पौलुस कहता है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से, यानी कि रूह से करने का तो मैं गैर ज़ुबान। बोले हालेलुया। एक वाक्य सुनिए, वाक्य ये है, एक मिशनरी स्वीडन के थे, जब वो पाकिस्तान में नए नए मिशनरी बन के आए, सुने सुने, स्वीडन की एक मिशनरी फैमिली पाकिस्तान में मिशनरी बन के आए, और जब वो पहली दफा छुट्टी लेके वापस स्वीडन गए तो ऐसा हुआ कि उनके अंदर थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, कम हिम्मती पैदा हो गई, और वो सोचने लगे नहीं पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, या खिदमत, ये बच्चे बताए प्लीज। वो सोचने लगे कि पाकिस्तान में खिदमत करना बहुत मुश्किल है, और थोड़ा सा उनका ये मूड बन गया कि वो नहीं जाएंगे वापस पाकिस्तान। ये बात मुझे ब्रदर नीलसन ने बताई, जो क्रिस्टीना के डैडी थे। तो वो कहते हैं, मुझे ये याद नहीं रहा कि उन्होंने अपने बारे में ये बात बताई थी या किसी और मिशनरी के बारे में, लेकिन उनकी बात बताई हुई थी। तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ जब वो खादम सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, पाकरू ने खिदमत के लिए पाकिस्तान भेजा, इसने फैसला किया कि वो नहीं जाएगा पाकिस्तान। तो क्या हुआ, एक प्रेयर मीटिंग में बैठे हुए सब लोग गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे थे। आप सुन रहे? हेलो, आप सुन रहे? सब लोग गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे थे। मुझे बताएं, उर्दू ज़ुबान जो है स्वीडन वालों की अपनी ज़ुबान है कि गैर ज़ुबान है? आप सुन नहीं रहे। अब वाक्या भी नहीं सुनते, वाक्या बयान कर रहा हूं। मुझे बताएं, उर्दू ज़ुबान अंग्रेजों के लिए अपनी ज़ुबान है कि गैर ज़ुबान है? तो स्वीडन में रहते हुए सब लोग गैर ज़ुबान बोल रहे थे, और एक शख्स बुलंद आवाज से ये कह रहा था, वफादार वफादार वफादार
उसको तो पता है, स्वीडन के किसी शख्स को पता ही नहीं कि लफ्ज क्या है। तो ये कौन सी जुबान थी? कौन सी जुबान थी? लेकिन वहां एक शख्स बैठा था जिसे पता था कि पाक रूह मुझसे कलाम कर रहा है, और उसी वक्त उसको पता चल गया कि ये तो पाक रूह मुझे कह रहा है, गैर जुबान वो बोल रहे हैं, मेरे लिए कलाम हो रहा है, और खुदा का पाक रूह बन कह रहा है वफादार। और फिर उसकी भाई ने, वो मिशनरी ने कहा मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप कहानी समझ गए? पाक रूह में दुआ करना सिखाता है, जैसे हमें करना चाहिए नहीं जानते, लेकिन रूह कुद्स जब आप बैचमा में दुआ करते हैं तो उसके बाद उर्दू में भी ऐसे अल्फाज दे देता है जिससे पता चलता है कि पाक रूह की क्या मर्जी है। बोले हालेलुया। पाक रूह खुदा है, जब खुदा है तो फिर क्या 15 मिनट का पैगाम? जी नहीं, अभी और काफी पैगाम इसमें है। आइए खड़े हो जाए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए।